Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will learn a new lecture from the course of Electronics 1. Remember that the course code for Electronics 1 is EE216, while this is a 2-1 credit hour course. It means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 contact hours lab requirement as well. The topic we will discuss or we will learn in this lecture is diode applications. In diode applications, we will discuss the half-wave rectifier and the full-wave rectifier circuits. Course details are such that we are in week number 4 and today we will learn lecture number 8, and the topic we will discuss in lecture number 8 is about the diode applications, in which we will discuss the very common application or the very popular application of a diode, that is the half-wave rectifier and the full-wave rectifier. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures. If you remember, in lecture number 1 we introduced the course by explaining the course description, the course outlines, or you can say that the tentative outlines. We also discussed the week-wise breakdown of these outlines as well. We discussed the recommended books for the course of Electronics 1. We discussed the prerequisite details, that is the AC and DC circuit analysis as a prerequisite for the course of Electronics 1. And in this lecture we also defined the term electronics formally and informally. Then in lecture number 2 we discussed the atom and the structure of an atom by discussing the Bohr model, the pills, and a process known as ionization, where the losing or gaining of electrons takes place. Similarly, in lecture number 3 we discussed the classification of a matter on the basis of the conductivity. Here we found that there are 3 distinct classes, that is the insulators, the conductors, and the semiconductors. The insulators are those material which cannot conduct under the normal conditions, while conductors are those materials which can easily conduct under the normal conditions. On the other hand, semiconductors are those materials which have some properties from the insulators as well as from the conductors. In this lecture we also discussed the energy bands, that is the valence band and the conduction band of an atom, and finally we discussed the covalent bond and the silicon crystal, the formation of a depletion region as well. Similarly, we discussed the energy diagrams and the energy hill. In lecture number 6 we discussed the p-n junction diode and the operation of a p-n junction diode. Here we discuss what is biasing, how we can connect a diode in a forward bias mode, what is a forward current, what is forward voltage. Similarly, how we can connect a diode in its reverse bias mode, what is reverse current, what is reverse voltage, and what is reverse breakdown voltage. In lecture number 7 we discussed the voltage and current relationship of a diode, or you can say that we draw a characteristic curve which presents the voltage and current relationship of a p-n junction diode. Here we discuss how we can draw the VI characteristic curve for the forward bias and for the reverse bias. Similarly, we discuss the effect of the temperature on the VI curve of a p-n junction diode. In this lecture we also discuss the diode approximations or the diode models, that is 3 type of diode models, that is the ideal, the practical, and the complete diode model. Today in this lecture we will start our lecture by discussing the basic DC power supply. Here we will discuss what are the rectifiers, what are the types of rectifiers. So we will see that there are 2 major types of the rectifier, that is half-wave rectifier and the full-wave rectifier. In half-wave rectifier, how we will represent or how we will draw the block diagram of the half-wave rectifier, and what is the operation or the working of a half-wave rectifier. Similarly, we will discuss the average value of a half-wave rectifier output voltage. We will discuss the effect of the barrier potential on the output we have obtained from the half-wave rectifier. Similarly, we will discuss the peak inverse voltage of a half-wave rectifier. The same concepts, the same things, the same parameters we will discuss for the full-wave rectifier. If you can see that we have 2 types of a full-wave rectifier, that is the center tip transformer based full-wave rectifier and the bridge full-wave rectifier.
We will discuss the block diagrams and the operation and the average value and the effect of the barrier potential and the peak inverse voltage for both center tape transformer based full wave rectifier and the bridge full wave rectifier. Recommended books for this lecture as well as this course include Electronic Devices with Conventional Current Version, authored by Thomas L. Floyd. We are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The other book is Electronic Devices with Electron Flow Version, authored by the same author, that is Thomas L. Floyd, using the same edition, that is 10th. These two are the recommended books for this course, but you will see that majority of the contents of this lecture as well as this course are taken from the first book, that is Electronic Devices with Conventional Current Version. So starting with the basic DC power supply. Remember that basic DC power supply is an instrument that converts standard AC voltage, which might be 110 volt or 220 volt, into a 50 along with 50 or 60 hertz into a constant DC voltage. In other words, we can say that simple basic DC power supply is a converter which converts AC voltage into a DC voltage. It is one of the most common electronic circuits, especially we use in electronic industries or in our labs, etc., etc. And that is used to power all types of electronic circuits such as TV receivers, such as CD and DVD players, such as the computers, industrial controllers like microcontroller and PLCs, most of the laboratory instruments, equipments, etc., etc. The block diagram of a DC power supply is shown over here. It is composed of several blocks. Here you can see that the first block is representing a transformer where a higher voltage 120 volt with 60 hertz input is given or provided to the transformer, and it provides a low level of the same voltage with the same frequency. So here you can see that the transformer is providing an output voltage at its output which is a low level. After that, this signal is provided to a rectifier where the rectification takes place, and that signal, which has both positive and negative sides, is converted into a pulsating DC. So here you can see that the output of a rectifier which is a pulsating DC. This pulsating DC is further passed through a filter where we have removed the discontinuities. Here you can see that कि हमारा सिग्नल जो डिसकंटिन्यू हो रहा है, सो इस डिसकंटिन्यूटीज को हमने ख़त्म करने के लिए इसको फिल्टर के थ्रू पास करवाया है. After passing through a filter, we will pass this signal from a regulator, और regulator का ये काम है कि वो इस सिग्नल के अंदर मौजूद जो रिपल्स हैं जो कि फिल्टर्ड वोल्टेज में हमें मिल रही हैं, इन रिपल्स को ख़त्म करके उसको रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. एंड आफ्टर दैट this regulated voltage is provided to a load. So one by one we will discuss all these terminologies or all these terms we have used in basic DC power supply. That is a transformer. A transformer is a device which converts one level of AC voltage into another level of a AC voltage. If it is a step down, so it will convert the high voltage into a low level voltage. If it is a step up, it will do the reverse depending on the application. Usually AC input line voltage is stepped down to a lower AC voltage. The second block representing a rectifier. Rectifier is a device which converts AC input voltage into a pulsating DC. So it might be half wave rectifier or it might be a full wave rectifier. Then the filter, it eliminates fluctuations in the rectified voltage. As I have told you, जो fluctuations थी, जो discontinuities थी, उनको ख़त्म करने के लिए हमने filter को इस्तेमाल किया हुआ है, and it produces a relatively smooth DC voltage. That is not completely smooth because it has a ripples. So in ripples को ख़त्म करने के लिए फिर हमने regulator इस्तेमाल किया था. Regulator maintains a constant DC voltage for variations in the
लोड। इन रिपल्स की वजह से जो वेरिएशंस थी इस डीसी वोल्टेज में, उन रिपल्स को ख़त्म करने के लिए और एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए फिर हमने रेगुलेटर इस्तेमाल किया था। एंड फाइनली अ लोड इज अ सर्किट और अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड with the output of the DC power supply in order to get power from that power supply, or in order to operate from the power supply voltage and current. What is a rectifier? Rectifier converts an AC input voltage into a pulsating DC voltage. Here you can see that we have shown a rectifier. At its input we are providing a 120 volt and 60 hertz input voltage, that is AC, and at the output we are having the rectified or the pulsating DC voltage. It is termed as a half wave because you can see that half of the wave is rectified while half of the wave is eliminated. So there are two types of the rectifier, that is the half wave rectifier and the full wave rectifier. Full wave rectifiers have further many types. Here we will discuss the center tape transformer based full wave rectifier and the bridge full wave rectifier. Now starting with the half wave rectifier. The half wave rectifier consists of an AC power supply as an input voltage. It has a diode as a rectifying device and a load resistor as a load. So a diode is connected to the AC voltage source के साथ हमारा diode जो है वो connected है. Here you can see that is representing the AC power supply जिसमें ये positive और negative sides हैं, और ये positive side of the battery जो है diode के positive side के साथ connected है. And to a load resistor, a diode is connected to voltage source and to a load resistor. Negative side इसका load resistor के साथ है. Assume the ideal model for the diode, and for now let's assume that the diode we are using is the ideal, means we are ignoring the barrier potential, the dynamic resistance, etc, etc. When the sinusoidal input voltage Vin goes positive, जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल का ड्यूरेशन होगा तो जो हमारे पास डायोड है दैट इज इन फॉरवर्ड बाइस फॉर दैट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एंड इट कंडक्ट्स करंट थ्रू द लोड रेजिस्टर. और पॉजिटिव साइड के लिए ये फॉरवर्ड बाइस होने की बदौलत हमारे पास ये किसी किस्म की कंजम्पशन नहीं करता. इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच या ऑन स्विच, और हमारे पास तमाम का तमाम करंट जो है इसमें से फ्लो हो रहा है और वोल्टेज जितना भी है वो अक्रॉस द RL ड्रॉप हो रहा है. सो हियर यू कैन सी दैट द आउटपुट इज अ रेप्लिका ऑफ द इनपुट. जो हमारे पास इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल था, आउटपुट पे हमारे पास सेम टू सेम वही चीज हमारे पास आउटपुट पे हमें मिल चुका है. नाउ the circuit has produced an output voltage across the RL having the same shape as the positive half cycle of the input voltage. When the input voltage goes negative, अब positive के बाद जब negative half cycle start हो रहा है during the second half cycle of the input voltage, diode is in reverse bias. So हमारे पास polarity change हो जाती है. You can see that now that is the positive terminal and that is the negative, and for that polarity you can say that the diode is in reverse bias. जब diode reverse bias में है, so we are familiar with the diode that in reverse bias it does not conduct. There is no current through the PN junction, so the voltage across the load resistor is 0 volt. जब हमारे पास किसी किस्म की कंडक्शन ये होने नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि करंट हम एज्यूम करते हैं कि इसके क्रॉस करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो RL के अक्रॉस भी हमें किसी किस्म की आउटपुट जो है वो रिसीव नहीं होगी. या यू कैन से दैट जितना भी हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है वो सारे का सारा अक्रॉस डायोड ड्रॉप हो रहा है because it is representing the infinite resistance. As a result, we are having nothing at the output during the negative half cycles. So the net result is what? Only positive half cycles is there across the load while there is no negative cycle. Output does not change polarity, that is pulsating DC voltage with the same frequency. और चूंकि हमारे पास सिर्फ positive half cycle मौजूद हैं,
नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं है, सो हमारे पास पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, यानी तमाम का तमाम सिग्नल हमारे पास पॉजिटिव में है. That's why it is known as a pulsating DC. स्मूथ नहीं है तो पल्सेस की फॉर्म में है, so that's why it is known as a pulsating DC with the same frequency, that is 50 or 60 Hz as the frequency of the input. यानी इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी वही रही, सिर्फ आउटपुट में ये फर्क आया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मौजूद थे जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई किया गया है. Now, what will be the average value of the half-wave rectifier output voltage? The average value of the half-wave rectified output voltage is the voltage or the value of the voltage measured on a DC meter. Means कि हम इस जो average value होगी half-wave rectifier के सर्किट की आउटपुट की या उसके आउटपुट वोल्टेज की, वो हम डीसी वोल्टमीटर के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं. अगर हम उसको मैथमेटिकली या मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दिस एवरेज वैल्यू इज एक्चुअली द एरिया अंडर द कर्व ओवर अ फुल साइकिल. यानी एक साइकिल के दौरान, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है, इस एक साइकिल के दौरान जितना एरिया आ रहा है अंडर द कर्व विच इज द पॉजिटिव. Over here you can see that the positive half cycle, that during a full cycle, that is known as a average value. Then dividing by the number of radians in a full cycle, और सिर्फ ये एरिया नहीं बल्कि इस एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे by the number of radians in a full cycle, यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास इस एक साइकिल के दौरान जितना एरिया अंडर द कर्व आ रहा है उसको एक फुल साइकिल के जो रेडियंस हैं उन पे डिवाइड करना है. So the result of this is expressed where Vp is the peak value of the voltage, and mathematically we can represent the V is equal to Vp, that is peak voltage, divided by the pi, where pi is equal to 3.1416 in radians. जबकि Vp इस केस में लेट से हमारे पास अगर 10 वोल्ट का सिग्नल था तो हम कह सकते हैं कि Vp is a 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.1416, जो कि पाई की वैल्यू है रेडियंस में. This equation shows that the V average is approximately 31.8% of the Vp for a half wave rectified voltage. यानी जो हमारे पास आउटपुट हमें मिला जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मौजूद थे, नेगेटिव नहीं थे, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी ओनली 31.8% जो होगा दैट विल बी द एवरेज वैल्यू. अगर आपका 10 वोल्ट का हाफ साइकिल है पॉजिटिव तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी 3.18 वोल्ट. अगर आपके पास 100 वोल्ट का वीपी है सो यू विल गेट 31.8 वोल्ट एज अ एवरेज वैल्यू. फॉर एग्जांपल, here we can see that what is the average value of the half wave rectified voltage in figure 2.22. हमें एक सिग्नल गिवन है जो कि एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है और इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है. सो V average is equal to Vp divided by pi. Vp is equal to 50 वोल्ट. अगर ये Vp to P होता तो मतलब पीक टू पीक, यानी एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो हमारे पास पीक बनता है वहां तक हम उसको कंसिडर करते, लेकिन चूंकि डीसी में हमारे पास नेगेटिव हाफ तो है ही नहीं, सो इस वजह से हमने यहाँ पर पीक वोल्टेज उसको कंसिडर किया हुआ है. तो पीक वोल्टेज इज रिप्रेजेंटिंग द 50 वोल्ट डिवाइड बाय द पाई इन रेडियंस विच इज 3.1416. जब आप 50 को 3.14 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट द 15.9 वोल्ट. आप कह सकते हैं कि 15.9 इज समवेयर ओवर हियर, यानी दैट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द output voltage. Notice that V average is 31.8% of the Vp. Effect of the barrier potential on half wave rectified output voltage. Now we will discuss that what is the effect of the barrier potential on the output voltage we have received from the we have obtained from the half wave rectifier circuit. So for practical diode model, now we are considering the practical diode model, that is a diode with the
barrier potential. For example, if it is made of a silicon, so we will consider 0.7 volt it as a barrier potential. So during the positive half cycle, the input voltage must overcome the barrier potential before the diode becomes forward bias. बावजूद इसके कि हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो, जब तक हम इसको 0.7 वोल्ट इनपुट से प्रोवाइड नहीं करेंगे ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा. सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्या है इस केस में 0.7 वोल्ट फॉर conducting the diode in forward bias. It results in a half wave output with the peak value that is 0.7 less than the peak value of the input. ये 0.7 वोल्ट जो है डायोड के अक्रॉस परमानेंटली ड्रॉप हो रहे हैं. सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो VP आउट होगा, जो कि मैक्सिमम हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट पे, उसमें से 0.7 को हमें माइनस करना होगा बिकॉज दैट इज परमानेंटली ड्रॉप्ड अक्रॉस द डायोड. पिछले केस में हमारे पास VP ही हमारा आउटपुट था जो कि हमारे इनपुट पे मौजूद था. सो नाउ VP इन, लेट्स से अगर इस केस में ये 10 वोल्ट है तो हमें 10 वोल्ट का हाफ साइकिल नहीं मिलेगा बल्कि उसमें से 0.7 को हमें माइनस करना होगा. The expression for the peak output voltage is given, that is VP out is equal to VP in minus 0.7 volt. The example is given where we have to draw the output voltage of each rectifier for the indicated input voltage. दो हमारे पास sections हैं, दो हमारे पास signals हैं, और इन signals के लिए हमने क्या draw करना है, output voltages को draw करना है. Remember that as shown in figure 2.24, the 1N4001 and 1N4003 are the specific rectifier diode. These are the two types of a diode. इन दोनों ही रेक्टिफाइड डायोड्स हैं लेकिन इनकी रेटिंग्स पे नॉर्मली फर्क होता है. सो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि दोनों सिलिकॉन के बने हुए हैं और 0.7 जो है इन्होंने कंज्यूम करना है. सो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सिग्नल गिवन है, इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज दैट इज +5 एंड -5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट का हमारे पास AC सिग्नल है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास 100 वोल्ट का AC सिग्नल है. Now the solution for this example is such that the peak output voltage for circuit A is VP out must be equal to VP in minus 0.7 because of the silicon. So we are having a 5 volt signal, so the output will be 5 volt minus 0.7, that is 4.3 volt. While for the section B, the output voltage for circuit B is given such that VP must be equal to VP in minus 0.7, where VP in is 100 volt, and when we will subtract 0.7 from it, so we will get 99.3 volt. Both output voltages are shown for circuit A and circuit B over here, that is A and B. Now the peak inverse voltage for the half wave rectifier. Remember that peak means maximum, inverse means when the diode is in reverse bias, and voltage is of course representing the voltage or potential. So you can say that the peak inverse voltage occurs at the peak of each half cycle of the input voltage when the diode is in reverse bias. As I have told you that peak inverse voltage, a peak voltage when our diode is in reverse bias. So again this statement is given over here. According to that statement, peak inverse voltage is the peak of each half cycle of the input voltage. यानी इनपुट वोल्टेज में हमारे पास वो पीक जिसके लिए डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में हो, that is known as a peak inverse voltage. In the under given example, peak inverse voltage occurs at the peak of each negative half cycle. अब देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में था, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा डायोड रिवर्स बाइस में था. सो दैट इज एक्चुअली जो नेगेटिव VP इन है यानी इनपुट वोल्टेज है, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज इन दिस केस. सो अ डायोड शुड बी रेटेड एट लीस्ट 20% हायर देन द पीक इनवर्स वोल्टेज. मींस कि हमें अपने डायोड को जो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज है उससे 20% हायर पे ऑपरेट करना चाहिए. Okay, now the full wave rectifier.
The full wave rectifier allows unidirectional, or you can say the one-way current through the load during the entire input cycle. यानी complete input cycle के लिए आपका जो full wave rectifier होगा वो conduction करता रहेगा. Whereas a half wave rectifier allows current through the load only during one half of the cycle. On the other hand, जो हमारे पास half wave rectifier था उसमें सिर्फ एक half of the input cycle के लिए conduction possible थी. So the result of the full wave rectifier rectification is an output voltage with a frequency which is twice the input frequency and that pulsates every half cycles of the input. As shown in figure, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एक रेक्टिफायर सर्किट कंसीडर किया हुआ है जिसकी इनपुट पर हमने AC वोल्टेज एज ए इनपुट वोल्टेज के तौर पर दी गई है, जिसमें आप दोनों हाफ साइकिल्स देख सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव. जब हमारे पास रेक्टिफिकेशन होती है फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू, तो जो हमें आउटपुट मिलता है तो हम देख सकते हैं कि जहां पर एक फुल साइकिल में आधा हाफ साइकिल पॉजिटिव था और आधा नेगेटिव था, वहां पर यहाँ आउटपुट में हमारे पास दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स की सूरत में हमें मिल रहे हैं. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी एक साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर एक साइकिल के अंदर दो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मौजूद हैं. सो द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड. Similarly, the average value for the full wave rectifier output voltage can be determined as the number of positive alternations is twice that of the half wave voltage for the same time interval. एक ही वक्त में जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट मिल रही थी उसके मुकाबले में फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशंस डबल दे रहा है, यानी ट्वाइस है उसके. So the average value which can be measured on a DC voltmeter for a full wave rectifier sinusoidal voltage is twice that of the half wave. तो जो हम already average value मालूम कर चुके हैं half wave rectifier के लिए, simply full wave rectifier का जो average value होगा वो उसके मुकाबले में twice होगा. यानी if you remember, तो VP divided by pi जो थी that was the average value for the half wave rectifier, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव अल्टरनेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो चुकी है फॉर द सेम टाइम. सो इस वजह से हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होंगे उनकी जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2Vp डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है. एंड रिमेंबर दैट द एवरेज वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 63.7% ऑफ द Vp फॉर अ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज. यानी अगर हम Vp के तौर पर 10 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा दैट विल बी 6.37%. अगर हम 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे एज ए Vp एज ए इनपुट वोल्टेज तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी 63.7 वोल्ट. Look at the example. Here we have to find the average value of the full wave rectified voltage. हमें ऑलरेडी एक रेक्टिफाइड वोल्टेज गिवन है इस फिगर में, और इस फिगर का या इस रेक्टिफाइड वोल्टेज का हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो यू कैन सी दैट Vp इज इक्वल टू 15 वोल्ट. सो द फॉर्मूला इज V एवरेज इज इक्वल टू 2Vp डिवाइडेड बाय पाई. सो 2 इंटू Vp की वैल्यू डाल दे 15 वोल्ट, पाई जो है 3.1416 के बराबर है, रेडियंस में उस पर डिवाइड कर दे एंड यू विल गेट द 9.55 वोल्ट विच इज एक्चुअली 63.7% ऑफ द टोटल Vp, जो कि यानी 15 वोल्ट का 63.7% जो है वो 9.55 वोल्ट जो है बन रहा है. Now the first type of the full wave rectifier, that is center tape transformer based full wave rectifier. It is a type of a full wave rectifier that uses two diodes, जिसमें दो diodes होंगे connected to the secondary of a center tape transformer. और ये दोनों diodes जो हैं वो center tape transformer के secondary windings के साथ connected होंगे, या secondary winding के जो दो terminal है उनके साथ connected होंगे. Here you can see that this is the symbol of a center tape transformer
कि जिसमें एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके बीच में से हमने यहाँ पर कनेक्शन लिया हुआ है और इसी वजह से इसको सेंटर टेप्ड कहा जाता है। इस कनेक्शन को लेने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगी उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हियर यू कैन सी दैट V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय T यानी टोटल डिवाइडेड बाय 2 यानी टोटल पोटेंशियल को जो कि सेकेंडरी वोल्टेज था उसको हमने डिवाइड बाय 2 करके दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। The input voltage is coupled through the transformer to the center tip secondary. Half of the total secondary voltage appears between the center tip and each end of the secondary winding as shown. यानी हम यहाँ पर एक पावर सप्लाई के दो पावर सप्लाईज बना रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारे पास इस सेकेंडरी से लेकर ऊपर वाले टर्मिनल तक एक वोल्टेज और इस सेकेंडरी कनेक्शन से लेकर नीचे वाले टर्मिनल तक हमारे पास ये दूसरा वोल्टेज सोर्स। तो जैसे कि दो वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हर एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमने एक एक डायोड D1 और D2 जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। Now for a positive half cycle of the input voltage, जब भी हमारे पास इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, so the polarities of the secondary voltage are shown as in figure. तो हमारे पास polarities क्या होंगी कि लेट से ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होगा और सेंटर वाला जो है वो नेगेटिव होगा। फिर दूसरे सप्लाई के लिए ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव होगा। दिस कंडीशन फॉरवर्ड बाइस डायोड D1 एंड रिवर्स बाइस डायोड D2। ये कंडीशन D1 को तो फॉरवर्ड बाइस में कन्वर्ट कर देता है और D2 को जो है रिवर्स बाइस मोड में ले आता है। नाउ द करंट पाथ इज थ्रू D1 and the load resistor RL as indicated। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान चूंकि D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है, D2 जो है वो रिवर्स बाइस में है, तो हम देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो है वो थ्रू D1 के RL तक जा रहा है। यानी हमारा करंट यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करवाएं लेट से, तो यहाँ से होते हुए RL के क्रॉस और फिर RL से निकलने के बाद यहाँ तक इस टर्मिनल तक वापस उसने पहुंचना है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है इस पूरे ऊपर वाले सेक्शन का। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 ने कंडक्ट किया जबकि D2 रिवर्स बाइस में होने की वजह से किसी किस्म का कंडक्शन नहीं कर रहा। एज ए रिजल्ट हमें जो आउटपुट मिल रहा है एक क्रॉस RL दैट इज बिकॉज ऑफ ए D1, वो हमारे पास डायोड D1 की वजह से है। Okay, then for a negative half cycle of the input voltage में जब negative half cycle की बारी आती है, so the voltage polarities on the secondary are shown in figure। तो हमारे पास जो voltage polarities होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। You can see over here कि अब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव पहले वाले हाफ का और ऊपर वाला नेगेटिव। सिमिलरली नीचे में ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होगा और ऊपर वाला नेगेटिव होगा। यानी ये एग्जैक्टली इन पोलैरिटीज जो यहाँ पर शो की गई थी पॉजिटिव हाफ के लिए, यहाँ पर उनके एग्जैक्टली अपोजिट हैं। अब हमारे पास क्या होगा इस दौरान, वी कैन सी दैट दिस कंडीशन रिवर्स बाइसेस डायोड D1। डायोड D1 को रिवर्स बाइस बनाता है एंड फॉरवर्ड बाइस इज डायोड D2, जबकि इस केस में हमारे पास डायोड D2 जो है अब फॉरवर्ड बाइस में है। करंट पाथ इज थ्रू डायोड नंबर 2 एंड थ्रू द RL। और हमारे पास अब जो करंट है वो D2 के रास्ते RL तक पहुंचता है। यू कैन सी दैट कि अगर हम इसकी पोलैरिटी या करंट की फ्लो को ड्रा करें तो हम कहते हैं पॉजिटिव से शुरू होकर हमारा करंट यूं होते हुए RL में आएगा और फिर चूंकि यहाँ पर ग्राउंड है और ये ग्राउंड आपस में अटैच होते हैं तो यहाँ से आने के बाद उसने अपना लूप जो है वो कंप्लीट करना था। तो कहने का मकसद ये है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल था इनपुट वोल्टेज का लाइक दिस वन, उस दौरान हमारा D2 जो था वो फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से कंडक्शन कर रहा था और उसने करंट को फ्लो करवाया और RL पे हमें जो है वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करवाया। जबकि इस दौरान डायोड D1 रिवर्स बाइस में था तो वो किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। एज अ रिजल्ट जब हमने देखा तो दोनों हाफ साइकिल्स के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला हमें आउटपुट मिल चुका था दैट इज बिकॉज ऑफ ए D1 और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला हाफ साइकिल हमें मिल चुका था दैट इज बिकॉज ऑफ ए D2। तो कंप्लीट साइकिल के लिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज अ कंप्लीट साइकिल। इस पूरे साइकिल के लिए आधे वक्त के लिए डायोड D1 काम करता है और आधे वक्त या आधे साइकिल के लिए डायोड D2 काम करता है। एंड हियर यू कैन सी दैट इस पूरे साइकिल में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की फ्रीक्वेंसी 1 थी, लेकिन यहाँ पर इस एक साइकिल के दौरान हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, ट्वाइस हो गई है। तो इसी वजह से हमारे पास एवरेज वैल्यू की वैल्यू भी जो हम एवरेज वोल्टेज मालूम कर रहे थे उसकी वैल्यू भी डबल हो चुकी है। Now we have to determine the effect of the turn ratio on the output voltage कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है उस पे टर्न्स रेशियो का क्या इफेक्ट है। यानी अगर हम ट्रांसफार्मर की टर्न्स की बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की, तो उसका आउटपुट वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। इफ द ट्रांसफार्मर्स टर्न रेशियो इज 1:1, अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर्स इस टाइप का है कि इसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी आर इक्वल, 1:1 का मतलब कि दोनों इक्वल हों। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 100 टर्न्स हैं प्राइमरी में, तो उतने ही टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी में होंगे। सो बोथ आर द इक्वल। एट दिस कंडीशन peak value of the rectified output voltage equals half the peak value of the primary input voltage less the barrier potential। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है, VP, जब वो सेकेंडरी में आएगा कन्वर्ट होगा तो जो यहाँ पर उसकी वोल्टेज है वो सेकेंडरी में भी होगी। लेकिन सेकेंडरी में हम जब सेंटर में से टेपिंग करते हैं और हम इसको दो बैटरीज में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल भी डिवाइड होगा। सो हेयर यू कैन सी दैट कि जो फर्स्ट हाफ है सेकेंडरी का उसमें VP प्राइमरी डिवाइड बाई 2, यानी अगर यहाँ पर लेट से ये 10 वोल्ट सिग्नल था इनपुट पर 10 to -10, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये सिग्नल ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा एंड नाउ इट विल बी अ 5 वोल्ट सिग्नल, 5 वोल्ट ऊपर जबकि 5 वोल्ट नीचे वाले सेक्शंस में होंगे, क्योंकि हम हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके बीच में से हम कनेक्शन लेते हैं और बीच में कनेक्शन लेने का मतलब कि आप उसकी दो पावर सप्लाईज बना रहे हैं और दो पावर सप्लाई जो होंगी वो हाफ ऑफ द टोटल होंगी, टोटल में से आधा आधा दोनों के क्रॉस होंगी। तो अभी हमारी रेक्टिफिकेशन हुई भी नहीं है और हमारा जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट पे ड्रॉप हो चुका है। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो आउटपुट होगा वो VP डिवाइड बाय प्राइमरी होगा और उसमें से भी हमने फिर जो डायोड का बैरियर पोटेंशियल है उसको माइनस करना होगा। सो एवरेज वैल्यू जो है उस और ज्यादा कम आएगी, क्योंकि अब हमारे पास अगर इनपुट 10 वोल्ट है तो यहाँ पर हमारे पास 5 - 0.7 हो जाएंगे, तो 4.3 हमें एज अ होल मिलेगा और 4.3 के बाद आप उसको 2VP डिवाइड बाय पाई के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इफ द ट्रांसफार्मर्स टर्न रेशियो इज 1:2, अगर हम ट्रांसफार्मर्स की रेशियो कुछ इस तरह से रखें कि वो 1:2 हो, यानी हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 1 टाइम है और सेकेंडरी जो है उसके ट्वाइस है, यानी दुगनी वैल्यू रखता है। लेट से अगर हमारे पास प्राइमरी में 100 वाइंडिंग्स हैं और सेकेंडरी में 200 वाइंडिंग्स हैं, तब हमारे पास रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। नाउ वी विल ऑब्टेन एन आउटपुट वोल्टेज विद अ पीक इक्वल टू द इनपुट पीक लेस द ड्रॉप ऑफ ए डायोड। मतलब अगर हमारे पास इनपुट पे अब 10 वोल्ट हम दे रहे हैं तो इस 10 वोल्ट को पहले डबल किया जाएगा सेकेंडरी में एंड नाउ इट विल बी अ 20 वोल्ट एज अ होल। अब सेकेंडरी पे कितनी वोल्टेज होगी, 20 वोल्ट की। फिर अगर हम बीच में से सेंटर टेपिंग करते हैं तो हमारे पास दो सेक्शंस बनेंगे, लेकिन अब ये दो सेक्शंस या ये दो बैटरीज या ये दो जो पार्ट्स बन रहे हैं दैट विल बी ऑफ द 20 वोल्ट। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 10 वोल्ट ऊपर वाले सेक्शन में और 10 वोल्ट जो होंगे वो नीचे वाले सेक्शन में होंगे। अब हमारे पास जो आउटपुट बनेगा तो VP प्राइमरी -0.7 होगा, यानी बैरियर पोटेंशियल को हम डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे कहाँ, किस चीज से, VP प्राइमरी से जो कि 10 वोल्ट है। तो हमारे पास ये जो एवरेज ये जो हमारे पास पीक वैल्यू बन रही है इस केस में V आउट पर दैट इज 9.3, जबकि पिछले केस में क्या था वो 4.3 बन रहा था। Here a step up transformer with a turn ratio of n is equal to 2 must be used, और यहाँ पर हमें step up transformer यूज करना है। उसके बाद उस step up transformer को जो है हमने सेंटर टेप करना है ताकि
रेक्टिफिकेशन से पहले हमारा वोल्टेज जो है वो डिक्रीज ना हो या उसमें कोई किसी किस्म का डिक्रीमेंट ना हो. The peak inverse voltage of a full wave rectifier. Here each diode in full wave rectifier is alternately forward biased and then reverse biased. ये जो हमारे पास सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें दो डायोड्स D1 और D2 हमने यूज किए हुए थे और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस होता है तो दूसरा रिवर्स बाइस होता है. जब दूसरा फॉरवर्ड बाइस होगा तो पहले वाला रिवर्स बाइस बन जाएगा. सो द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस आइदर डायोड इन अ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर हमारे पास किस चीज के बराबर होगा कि चूंकि अगर हम D1 के लिए मालूम करें तो D2 उस वक्त फॉरवर्ड बाइस में होगा और अगर D2 के लिए मालूम करें तो D1 फॉरवर्ड बाइस में होगा और फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से इसका मतलब क्या था कि 0.7 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे. सो जो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 2Vp यानी Vp आउट उसका डबल दुगना प्लस 0.7 वोल्ट ये वो वोल्टेज ड्रॉप है कि जिस दौरान लेट से अगर आप D1 के लिए मालूम करना चाहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज तो D2 जो था उस वक्त फॉरवर्ड बाइस में था और फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से वो 0.7 ड्रॉप कर रहा था. तो हमारे पास टोटल पीक इनवर्स वोल्टेज में 2Vp प्लस 0.7 वोल्ट होगा. In this example, we have to show the voltage waveform across each half of the secondary windings. हमें हर एक सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वेवफॉर्म शो करनी है एंड अक्रॉस RL और हमें आउटपुट भी मालूम करना है अक्रॉस RL. When a 100 volt peak sine wave is applied to the primary winding in figure 2.36. इस फिगर में इनपुट वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट लिया गया है और हमने क्या करना है we have to show voltage waveforms across each half of the secondary winding. ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग का हाफ है और ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग का हाफ है तो हमें सबसे पहले तो इनके अक्रॉस वेवफॉर्म शो करने हैं और फिर हमें इस RL के अक्रॉस जो वेवफॉर्म होगा वो भी शो करना है. एंड सेकेंडली व्हाट मिनिमम पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग मस्ट बी द डायोड हैव और इन डायोड्स चाहे डायोड D1 है या चाहे डायोड D2 है या दोनों है इनके लिए हमने पीक इनवर्स वोल्टेज भी शो करना है. सो इन अ सॉल्यूशन यू कैन सी दैट for the first part, the transformer turn ratio is N is equal to 0.5. So the total peak secondary voltage is Vp secondary is N into Vp primary which is 0.5 into 100 and equal to 50 volt. अगर हम यहाँ पे देखें 2:1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे वाइंडिंग्स की तादाद लेट से अगर 200 है तो यहाँ पर वाइंडिंग की तादाद 100 है एंड दैट इज अ स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन. तो पहले ही रेक्टिफिकेशन से पहले ही यहाँ पर आपका जो 100 वोल्ट का सिग्नल है वो जब यहाँ पर सेकेंडरी की तरफ आएगा नाउ दैट विल बी अ 50 वोल्ट सिग्नल. अब ये 50 वोल्ट बन जाएगा क्योंकि 50 वोल्ट जो है इसमें ड्रॉप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ द वाइंडिंग्स. There is a 25 volt peak across each half of the secondary with respect to the ground. अब हमारे पास टोटल 50 वोल्ट है लेकिन हम कहते हैं कि ये 50 वोल्ट दो हिस्सों में तकसीम होगा. सो फर्स्ट हाफ में भी 25 वोल्ट और सेकंड हाफ में भी 25 वोल्ट यानी दो जगह पर डिवीजन हुई. पहले हमारे ट्रांसफार्मर ने 100 वोल्ट को कम करके 50 वोल्ट कर दिया और फिर ये 50 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो था वो सेंटर टेपिंग की वजह से 25 वोल्ट में डिवाइड हुआ. The output load voltage has a peak value of 25 volt less than 0.7. तो हमारे पास जो हमें आउटपुट पे मिलेगा वो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर D1 की वजह से ये हाफ मिल रहा है तो 25 में से हमें 0.7 को माइनस करना पड़ेगा. D2 की वजह से मिल रहा है तो 25 में से 0.7. तो कंटिन्यूअसली हमें हाफ पॉजिटिव्स मिल रहे हैं लेकिन इनकी वैल्यू क्या है पीक वैल्यू 24.3 वोल्ट जो कि हमारे पास एक्चुअल में 25 माइनस 0.7 से हमें मिल रहा है. इनपुट में आप देख सकते हैं कि +25 -25 जबकि आउटपुट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव साइकिल्स हैं और हर एक साइकिल में से 0.7 को हमें माइनस करना पड़ रहा है. पार्ट बी में each diode must have a minimum peak inverse rating of. पार्ट बी में
पीक इनवर्स वोल्टेज शो किया गया है हर एक डायोड के लिए, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है, तो दोनों के लिए हमारे पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा दैट विल बी 2 VP आउट, यानी VP आउट जो कि इस केस में हमारे पास 24.3 वोल्ट है, और मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, और प्लस 0.7, सो कलेक्टिवली वी आर गेटिंग द 49.3 वोल्ट फॉर ईच डायोड, यानी हर एक डायोड के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा दैट इज 49.3 वोल्ट के बराबर है। नाउ द ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 डायोड्स। ब्रिज रेक्टिफायर में ये भी हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और इसमें हमारे पास 4 डायोड्स इस्तेमाल हुए हैं। व्हेन द इनपुट साइकिल इज पॉजिटिव, अगेन उसी तरह से जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट का, द डायोड D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बाइस, तो इन 4 डायोड में से एक कपल जो होगा D1 और D2 वो फॉरवर्ड बाइस में होंगे, एंड दे विल कंडक्ट करंट, और ये करंट को कंडक्ट करेंगे। अ वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द RL, और जब ये कंडक्शन होगी तो हमारे पास RL के क्रॉस वोल्टेज भी डेवलप होगी, दैट लुक्स लाइक द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, और ये बिल्कुल उसी तरह से है जो हमारे पास हमारे इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इफ यू कैन सी ओवर हियर इन द फर्स्ट डायग्राम ऑफ दिस फिगर, during the positive half cycle of the input D1 and D2, that is the couple of D1 and D2 जो कि इस वक्त conducting mode में है, conduction कर रहे हैं, they are forward bias and they are conducting the current, while at the same time D3 and D4 are reverse biased। D3 और D4 जो है इस केस में हमारे पास reverse biased हैं। During this time diode D3 and D4 are reversed biased, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है और उस इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट पर हमारे पास बिल्कुल उसका आइडेंटिकल पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो अपीयर हो चुका है, क्योंकि जो करंट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर D1 के थ्रू, फिर RL के थ्रू, और RL से गुजरने के बाद यहाँ पर D2 से वापस होते हुए अपना लूप उसने कंप्लीट किया हुआ है। लूप कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास RL के क्रॉस वोल्टेज अपीयर होता है, दैट इज जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द RL। ओके, व्हेन द इनपुट साइकिल गोज नेगेटिव, जब हमारे पास इनपुट साइकिल का नेगेटिव हाफ शुरू होता है, सो नाउ डायोड D3 एंड D4 आर फॉरवर्ड बाइस। अब इस केस में D3 और D4 फॉरवर्ड बाइस में है, एंड दे विल कंडक्ट करंट in the same direction through RL as during the positive half cycle। एक चीज आपने याद रखनी है कि इस केस में अब हमारे पास D3 और D4 का जो पेयर है ये कंडक्शन करेगा, जबकि D1 और D2 जो है इस वक्त रिवर्स बाइस में होने की वजह से किसी किस्म का कंडक्शन नहीं करेंगे। बट जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट करता है और यहाँ पर पहुंचता है तो D4 के रास्ते से, फिर RL, और फिर RL से निकलने के बाद यानी यहां से D3 के रास्ते अपना लूप जो है ये कंप्लीट कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है कि पहले केस में हमारे पास करंट जिस डायरेक्शन से इस रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा था, अभी भी हमारे इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन सेम टू सेम है, यानी वही है। तो इसका मतलब है कि पहले जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्रॉ हुआ था, अभी हमारा जो वोल्ट मीटर है या जो हमारा साइनोसाइडल वेव्स को शो करने वाला ऑसिलोस्कोप वगैरह है, वो हमें वही या उसी अंदाज में उसी पोलैरिटी के साथ सेकेंड हाफ को भी शो करवाएगा। During the negative half cycle, D1 and D2 are reverse biased. A full wave rectified output voltage appears across RL as a result of this action। और हमारे पास full wave rectified output voltage हमें मिली across the RL, जिसमें दोनों हाफ साइकिल जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास पोलैरिटी यूं थी, लेकिन पॉजिटिव जो नेगेटिव हाफ साइकिल था जब हमने आउटपुट पे देखा तो वो हमारे पास अगेन पॉजिटिव हाफ में तब्दील हो चुका था। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हमारे पास आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हाफ बन चुका है।
Now the peak inverse voltage for the bridge rectifier if diode D1 and D2 are forward bias, visualizing D1 and D2 as short यानी ideal अगर हम उसको consider कर लें, D1 और D2 अगर हमारे पास forward bias हैं at the same time D3 and D4 जो है वो reverse bias में होते हैं. So जो हमारे पास peak inverse voltage है across each reverse bias diode in term of a VP out is equal to peak inverse voltage which is equal to VP out plus 0.7. यानी हम तो पीक इनवर्स वोल्टेज एक डायोड के लिए मालूम करते हैं, तो चाहे आप D3 के लिए करें, चाहे आप D4 के लिए करें, या चाहे आप D1 के लिए करें या D2 के लिए करें, आपके पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा that will be equal to VP out plus 0.7. तो VP out plus 0.7 इसके लिए भी, VP out plus 0.7 इसके लिए भी होगा. What is next in lecture number 9? In lecture number 9 we will discuss the other important applications of a diode, that is the diode limiter, which can also be termed as a clipper or a slicer. We will discuss the operation of a simple diode limiter circuit. We will discuss the variations of this simple diode limiter, that is the positive limiter, the negative limiter and the dual limiter. We will also discuss the operation of a biased limiter circuit, which is not simple, and again we will see the positive and the negative and the dual biased limiter circuit in that lecture number 9. Another important application of a diode is diode clamper, which is also known as a DC restorer. We will discuss the operation of a diode clamper circuit and the two types, that is the positive clamper and the negative clamper, will also be discussed in lecture number 9. Thank you very much. That is all for today. If you have any question, you can ask me through my email, that is shahid.csit@soot.edu.bk. Once again, thank you very much.